اب اصل موضوع پہ آتے ہوئے میں بات کو لمبی نہیں کروں گا، مختصر کروں گا اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ کے ساتھ مجھے بھی میرے بھائی میرے دوست مظفر شاہ میری صاحب کا کلیدی خطبہ سننا ہے۔ دراصل اس غرض سے بھی میں یہاں تشریف لایا ہوں۔ تو معزز حاضرین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا غور کیجئے، دو چار چیزیں میں آپ کے سامنے پس منظر کے طور پہ رکھتے ہوئے اردو کی جانب آؤں گا۔ تو سب سے پہلے تعلیم میں اسلام کا کیا موقف ہے، اور پھر اردو کا موقف کیا تھا، اب کیا ہے، اس کے لیے ذمہ دار کون ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے اردو کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے۔ تو ان چند پہلوؤں کو کور کرتے ہوئے سرسری طور پہ میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ معزز حاضرین، میں توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارے سامنے ایک کتاب موجود ہے جو کہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہ ہے قرآن شریف، اور یہ کتاب نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اس قرآن شریف کا نزول جس لفظ سے ہوا وہ کیا تھا؟ اقرا، لفظ اقرا، لفظ اقرا سے قرآن شریف کا نزول عمل میں آیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اتنی ضخیم قرآن شریف میں اللہ پاک نے صرف لفظ اقرا کا انتخاب کرتے ہوئے اس کا نزول کیا۔ تو لفظ اقرا کے کیا معنی؟ لفظ اقرا کے معنی پڑھیے، پڑھو۔ تو کیا یہ ایک کیفیت کافی نہیں ہے؟ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اسلام میں تعلیم کا کیا موقف ہے؟ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کو اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ اب رہی بات دوسری جانب دستوری کیفیت۔ معزز حاضرین، یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہوں گے ہندوستان کا دستور جیسا بہترین دستور دنیا میں شاید ہی کہیں پایا جاتا ہو۔ یہ بہترین دستور اس لیے ہے کہ اس میں تمام شہریوں کو برابر کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، کیونکہ جو تعلیمی حالت ہے وہ SC ST سے تھوڑا بہتر اور BC سے ابتر ہے۔ تو یہاں غور طلب پہلو ہے، یہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے۔ لمحہ فکر اس لیے کہ جس قرآن شریف کو ہم مانتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس کا نزول لفظ اقرا سے ہوا، اس کے باوجود بھی دستور ہند کے تحت مساوی مواقع حاصل رہنے کے باوجود بھی اس طرح کی تعلیمی پستی کیوں ہے؟ کیا یہ لمحہ فکر نہیں ہے؟ کیا یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے جس کی جانب متوجہ ہونا اور اس خامی کو جہاں کہیں بھی پائی جاتی ہے حل کرتے ہوئے آگے بڑھنا کیا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے؟ بالکل ضروری ہے۔ اب آئیے ہم اردو کی بات کریں گے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے، اردو کو مسلمانوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ واقف ہیں، اردو خطی مسلمان کی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستانی زبان ہے۔ یہ ہندوستان میں پیدا ہوئی سب کے لیے، جس کو لشکری زبان کہتے ہیں، مختلف زبانوں کی ملی جھلی یہ زبان ہے۔ بدقسمتی سے اس کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ترقی حاصل نہ کرتے ہوئے تنزل کی جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا اردو جو زبان تھی اس قدر ترقی یافتہ تھی ہندوستان میں کہ شاید آپ واقف بھی ہوں گے کہ خاص طور پہ ساؤتھ میں، جہاں ریاست حیدرآباد میں MBBS جیسے کورس کی تعلیم بھی اردو میں ہوا کرتی تھی، اور سرکاری زبان اردو میں ہوا کرتی تھی، اردو زبان کورٹ لینگویج ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح کے اہم رتبے کو اردو زبان حاصل کی، مگر اس کے باوجود بھی آج وہ اس موقف کو نہیں رکھتی۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے لیے ذمہ دار سرکار تو بعد میں آئے گی، ہم خود ہیں، ہم خود ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہماری جانب، جیسے کہ اس سے پہلے میرے ایک مقرر نے کہہ رہے تھے اور انہوں نے ایک نشاندہی بھی کی کہ اس کے لیے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم خود ہمارے بچوں کی تعلیم اردو میں نہیں کرواتے،
कम से कम दूसरी ज़बान की हैसियत से भी उर्दू की तालीम का इंतज़ाम हम नहीं करते। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जब हम खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं तो फिर हम हुकूमत को किस तरह से ब्लेम करेंगे, किस तरह से इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराएंगे। तो लिहाजा हमको चाहिए कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कम से कम दूसरी ज़बान की हैसियत से उर्दू की तालीम का इंतज़ाम हमारे अपने घरों में अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उस वक्त तक उर्दू का तरक्की करना एक ख्वाब सा बनकर रह जाएगा। अब रही इस वक्त का जो मौक़िफ़ है, सरकारी तौर पर किस तरह की कोशिश जारी है उर्दू की तरक्की के लिए, तो यहाँ मैं ख़ुसूसी तौर पे नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ज़िक्र करना चाहूँगा। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको हुकूमत हिंद ने क़ायम किया पार्लिमान के एक एक्ट के ज़रिए 1998 में, जो कि हैदराबाद में वाक़े है, और ये मरकज़ी यूनिवर्सिटी है जिसकी बदौलत इसकी शाखें पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो इस बात का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम से मुताल्लिक़, इनके कोर्सेस से मुताल्लिक़ आप वाकिफ़ हो जाएँ। हमारे साल जो हर साल दाखिले होते हैं तो उस वक्त दाखिलों में ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ रियासतों के बनिस्बत रियासत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के या फिर रायलसीमा के इलाक़े से बहुत कम तालिब इल्म आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका क़याम उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए हुआ है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ तमाम कोर्सेस की तालीम उर्दू में दी जाती है, चाहे वो आर्ट्स हो, सोशल साइंसेस हो, टेक्नोलॉजी हो। इसके बावजूद भी उस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए उतना कंपटीशन नहीं है जितना होना चाहिए। इसकी वजह है मालूमात की अदम मौजूदगी। तो इसीलिए मैं इस बात का ज़िक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। अभी एक और बात का ज़िक्र किया गया मेरे से पहले कि हुकूमतें, ख़ास तौर पे रियासती हुकूमत उर्दू की तरक्की के लिए क्या कर रही है। मैं समझता हूँ कि मरकज़ी सतह पर जो कोशिश हुई थी उर्दू की तरक्की के लिए, वैसी ही कोशिश अगर हिंदुस्तान के किसी रियासत में हुई है तो वो हुई है सिर्फ़ और सिर्फ रियासत आंध्र प्रदेश में। यहाँ मैं दो बातें आपके सामने रखते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। पहली बात, चंद्रबाबू नायडू जो कि हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया करनूल ज़िले में। क्या ये कम कारनामा है उर्दू की तरक्की के लिए? क्योंकि देखिए, उर्दू की तरक्की उसी वक्त होगी जब तालीमी इदारे क़ायम होंगे, जब हमारी नई नस्ल उसमें शरीक होते हुए तालीम को हासिल करके आगे बढ़ेगी। और उसी तरह रियासत आंध्र प्रदेश का एक और कारनामा, चंद्रबाबू नायडू साहब जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद मरकज़ी हुकूमत को ख़त लिखा कि वो कड़पा ज़िले में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की एक शाख को क़ायम करें। मैं फिर तवज्जो दिलाता हूँ, अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को मकतूब लिखा, ख़त लिखा कि वो कोशिश करें और मरकज़ी यूनिवर्सिटी की एक शाख को इस ज़िले में क़ायम करें। उस वक्त इत्तेफाक से मैं रजिस्ट्रार था। ज़िला कड़पा के कलेक्टर को मेरी जानिब से लेटर्स वगैरह भी लिखे गए हमारे वाइस चांसलर साहब के ताउन से ज़मीन अलाटमेंट के लिए, और ये काम अब भी जारी है ज़मीन की अलाटमेंट के लिए कड़पा डिस्ट्रिक्ट में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए। और बहुत जल्द कड़पा में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की एक शाख क़ायम होगी, और हो सकता है कि पहले मरहले पर उस शाख में एक मॉडल स्कूल और एक पॉलिटेक्निक स्कूल का क़याम अमल में आए। तो इन दोनों तजावीज़ को जब मैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था, हमारे वाइस चांसलर साहब की मंजूरी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रवाना किया हूँ, और वहाँ वो काम जारी है। और इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं मौजूदा, डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, वो भी उर्दू के काफ़ी हमदर्द इंसान हैं। उन्होंने उर्दू की तरक्की के लिए एक नई राह क़ायम करने की कोशिश की है, और वो कोशिश है ब्रिज कोर्स का क़याम या ब्रिज कोर्स को मुतारफ़ करवाना। तो ब्रिज कोर्स से मुराद अपने मदारिस में जो तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं
मुख्तलिफ डिग्रियाँ मदारिस की जो हासिल करते हैं, अगर वो मदारिस की डिग्रियाँ चाहे 10th की हो या ये इंटर की हो, इक्वलेंट टू मदरसा बोर्ड से करार पाती हैं, तो वो उर्दू यूनिवर्सिटी में ब्रिज कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और ब्रिज कोर्स में कामयाबी के बाद डायरेक्ट BA, BSc, BCom में उनका दाखिला हो सकता है। तो गोया इस तरह से उर्दू की तरक्की के लिए नए वाइस चांसलर साहब ने एक राह हमवार की है और उस कोशिश को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए हमारे नए रजिस्ट्रार जो कि डॉक्टर शकील अहमद साहब हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली से हैदराबाद मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी आए हुए हैं रजिस्ट्रार की हैसियत से, वो भी आगे बढ़ रहे हैं इस काम को लेकर। तो बहरहाल इस तरह चंद बातें आपके सामने रखते हुए, इस बात का आपको एहसास दिलाते हुए कि हम वो कौम हैं जिसकी किताब का नुज़ूल लफ्ज़ इक़रा से हुआ, हम उस मुल्क के शहरी हैं जिसके दस्तूर में सबको बराबर के मौक़े हासिल हैं, और फिर हम उस शहर में मौजूद हैं जो कि तालीम के लिए मशहूर व मारूफ़ है, उर्दू अदब, उर्दू ज़बान के लिए मशहूर व मारूफ़ है। इन तमाम चीज़ों की एक दफ़े फिर आपको याद दही दिलाते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा, ये कहते हुए कि हुकूमत पर हम तकिया बाद में करें और ख़ुद पहले आगे बढ़ें। ख़ुद आगे बढ़ने के लिए देखिए दो मिसालें आपके सामने हैं। अभी BPC की बात की गई। अगर फ़र्ज़ कीजिए जो साहिबीन जो इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो दिलचस्पी ना लेते तो ज़ाहिर है इस कोर्स का आगाज़ नहीं होता। उसी तरह सदर जलसा ने एक तरगीब दिलाने की कोशिश की ख़वातीन को कि ख़वातीन की एक शाख होनी चाहिए, तो यकीनन होनी चाहिए। ख़वातीन की शाख रहेंगी और मुख्तलिफ़ इदाराजात में मुख्तलिफ़ कोर्सेस मुतार्रफ़ कराए जाएंगे, तो यकीनन उर्दू की तरक्की वाक़ई होगी और वो मुकाम हासिल करेगी जो मुकाम उसको बहुत पहले हासिल हो चुका था और जिससे वो महरूम रही, न सिर्फ दूसरों की लापरवाही के लिए वजह से बल्कि खुद हमारी अपनी तसावली, अपनी लापरवाही की बदौलत। तो बहरहाल इस मौके के लिए मैं फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करते हुए, बिलखुसूस सैयद हिदायतुल्लाह साहब का खुद शुक्रिया अदा करते हुए जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम इनायतुल्लाह हज़रत के फ़र्जंद रह चुके, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को एक और बात की जानिब तवज्जो दिलाते हुए ख़त्म करूँगा। वो है, यहाँ मैं ज़िक्र करूँगा बिलखुसूस महमूद साहब का जो कि वसीला पेपर चलाते हैं। अब आप समझेंगे भाई उनका ज़िक्र मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि ये उर्दू की तरक्की का एक खामोश ज़रिया है, एक खामोश कोशिश है ना भाई। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, नावाकिफ़ हैं, भाई उनको क्या पड़ा, इस अखबार को चलाने से उनको कोई फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ शायद वो नुकसान में है। इसके बावजूद भी एक कोशिश अदब को, ज़बान को ज़िंदा रखने की और अपनी बात को मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचाने की वो जो कोशिश कर रहे हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए आप सबके सामने उनकी खिदमत को पेश करते हुए और तमाम ये जो अंजुमन है उसकी खिदमत का भी एतराफ़ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।